Good morning, students. Welcome to your class of English. We have been studying poem that Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. It is almost ended. All exercises are almost done. Some are left. Almost means maximum we have done. The last one I am telling you, that is exercise question number 8, where you have to write the appreciation of poem. On the basis of points such as title, poet, rhyme scheme, favorite line, theme or the central idea, figure of speech, special features means types of poem, language, tone, implied meaning, etc. and why I like dislike the poem. इसके आधार पर आपको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में पोएम का क्रिटिकली एनालाइज करना है। एक मतलब एप्रिशिएशन लिखना है। आपको पसंद है तो क्यों है, नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, टाइटल के बारे में आपको बताना है, पोएट के बारे में आपको बताना है, राइमिंग स्कीम है तो कौन सी है ना, फिर फेवरेट लाइन आपको कौन सी लगी, उसका क्या मीनिंग होता है, फिर थीम यानी सेंट्रल आइडिया पोएम किस एक खास बात के इर्द गिर्द घूमती है, क्या है उसका निचोड़, सार क्या है पोएम का, फिर फिगर ऑफ स्पीच आपको कौन सी दिखी उसमें, और स्पेशल फीचर्स में पोएम का टाइप क्या है, उसकी भाषा कैसी है, टोन कैसी है, उसमें क्या मीनिंग निकला है, मैंने पसंद किया है नहीं किया इस पोएम को, ये सारे पॉइंट्स पर हमको लिखना है एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम। ओके, ये आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी किया होगा, सो दिस इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू। आई गिव यू द आंसर फॉर दिस, देन यू हैव टू आल्सो ट्राई बाय योर ओन। फर्स्टली we will write, and then the next two questions will be homework for you, that will be question number 9 and 10। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस पोएम की जितने भी एक्सरसाइजेस है, जितना भी हमने वर्कशॉप इसका किया है, जो भी हार्ड वर्ड्स भी आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे मुझे कॉपी में चाहिए। ऑल एक्सरसाइजेस, ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एवरी एक्टिविटी you have to copy down in the copy. That will be good for your writing, that will be good for your memorizing, that will be good for developing that writing practice, है ना? So you have to note that. Then now we are doing appreciation of the poem. Question number 8. Question 8. Appreciation of the poem. इसका आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। सो what is the title of the poem? You know that. What is the title? The poem. The poem Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear. Where the mind is without fear is composed by, who has composed this? इसने लिखा by the great Nobel laureate, Laureate, the great Nobel laureate. Great Nobel laureate means the recipient of Nobel Award. Nobel Prize is very it's highly prestigious prize in the whole world, and that was received in the field of literature by the great Rabindranath Tagore. So that's why the person who have received Nobel prizes, they are known as Nobel laureate. Okay, so we are writing that this poem is composed by the great Nobel laureate Rabindranath Tagore. Tagore. Okay, this is about the title of the poem. Then this poem is written. Then it is asking
rhyming scheme, है ना? Rhyming scheme, there is no rhyming scheme. We haven't got there the rhyming words, है ना? Rhyming words कैसे होते हैं? तुकबंदी जिनमें मिलती रहती है, एंड वाले words सेम सेम साउंड करते हैं, जैसे साउंड है, पाउंड है, माइंड है, फाइंड है, या फिर गेट है, सेट है, ऐसे कोई वर्ड्स आपको मिल रहे हैं क्या? नहीं. सो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. दिस पोएम is written in free verse without any rhyming scheme. scheme, rhyming, 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 scheme, scheme. There are many figures of speech. कविता पढ़ते पढ़ते हमको बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मिले, हम उनके बारे में लिख रहे हैं अभी कि इन दिस पोएम वी गॉट मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच बिकॉज इन दैट पैराग्राफ फॉर्मेट वन पॉइंट इज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. ओके, सो देयर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच such as repetition, repetition, metaphor. ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाया. आई हैव टॉट यू दिस ऑल. ओके, वो नोट्स आपको बार बार देखना है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करना है, भूलना नहीं है. रेपिटेशन, मेटाफर, एलिटरेशन, personification, synecdoche, synecdoche, synecdoche. ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है लेकिन आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर. हो सकता है मैं आपको इसके नोट्स दे दूं बाद में, ठीक है? synecdoche एक्सेट्रा. एंड इम्पॉर्टेंट, तो आपको यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच मिलती है कविता में? रेपिटेशन मिला, मेटाफर, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, synecdoche. synecdoche में क्या होता है? एक मतलब एक अंग से, एक वर्ड से पूरे होल को इमेजिन किया जाता है. जैसे कवि ने यहाँ पर कहा है लेट माई कंट्री अवेकन, वेयर पोएट इज प्रेइंग टू गॉड द ऑलमाइटी फॉर अवेकनिंग हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन. तो जहाँ पर कवि ने अपनी कंट्री को जागृत करने के लिए कहा है, मतलब कंट्री किस बात को इंडिकेट कर रही है? पूरे देश के लोगों को. ठीक है, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ synecdoche. सो एन इम्पॉर्टेंट figure of speech is metaphor. रूपक अलंकार ना, metaphor means metaphor. That example of this metaphor is dreary desert scent of dead habit. D-R-E-A-R-Y, dreary. Desert, D-E-S-E-R-T, desert. Send of dead habits. Here
here old orthodox habits, old orthodox means बहुत रूढ़िवादी, प्राचीन, रूढ़िवादी, orthodox, here old orthodox habits have been compared to very desert sand. ठीक है, ये मेटाफर आपको मिला है यहाँ पर कौन सी इस लाइन में, ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ दैट हैबिट्स। इसके पहले भी पोएम में था एक क्वेश्चन, मेटाफर को उठाना था आपको पोएम में से, तो हमने ये एग्जांपल लिखा था जहाँ पर जो पुरानी प्राचीन परंपराएं जो है वो उनकी तुलना किससे की गई है, सुनसान उजाड़ रेगिस्तान से, है ना। Then I will clean the board so that I could write from this place. आपको एक भी स्पेलिंग गलत किए बगैर लिखना है। आप कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हमको दिख नहीं रहा था, क्योंकि मैं लिखते लिखते बोलते भी जा रही हूँ। तो आप डिक्टेशन से भी लिख सकते हैं क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, है ना। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स मुझे नहीं दिखनी चाहिए कॉपी में। डोंट मेक एनी स्पेलिंग रॉन्ग। Then the most beautiful figure of speech is personification. T-I-O-N. The most beautiful figure of speech is personification. That is my favorite line too. That is my favorite, F-A-V-O-U-R-I-T-E, favorite line टू, T-O-O, जो कि मेरी खास बहुत पसंदीदा लाइन है उस पोयम में, और एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। दैट इज माय फेवरेट लाइन टू in the poem. The most beautiful figure of speech is personification. That is my favorite line too in the poem. What that line is? Where tireless striving stretches its arms. Where tireless striving, S-T-R-I-V-I-N-G, striving, stretches its arms. Where tireless striving stretches its arms. इसमें पर्सोनिफाई किया गया है yes. So here the poet says, that we can actually
visualize, 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 tireless striving, striving, stretches its arms to reach the goal. To reach the goal. What is my favorite line in the poem? And that is a very beautiful figure of speech in the poem is where tireless strive. The most beautiful figure of speech is personification. That is my favorite line too in the poem. पोएम में मेरी फेवरेट लाइन और बहुत ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. इस लाइन में मुझे मिलती है where tireless striving stretches its arms. Here the poet says that we can actually visualize tireless striving stretches its arms to reach the goal. Tireless striving. When I explained you poem, I told you that what is tireless striving? That are the continuous efforts. They are stretching its arms like this. मतलब अपनी बाहें फैलाकर जो कंटिन्यूस संघर्ष है लोगों का वो अपनी बाहें फैला रहा है. मतलब निरंतर शुरू है अपने ध्येय की अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. टू रीच द गोल. Okay, so this is the most beautiful personification, that is figure of speech that I have liked the most, and this is my favorite line too in the poem. Okay, then now about poem. This poem is a prayer. ये क्या है? पोएम प्रार्थना है. कवि प्रार्थना करता है ईश्वर से. Prayer to God. Tagore asks the Almighty to awaken his country. ये वाली लाइन में अगर आप देखेंगे where tireless striving stretches its arms, यहाँ पर आपको एलिटरेशन भी मिलता है. साउंड एस, striving stretches, है ना. So it is also that figure of speech alliteration also you are getting there. Then this poem is a prayer to God. Tagore asks the Almighty to awaken his country into a heaven of freedom. Heaven of freedom. Where there is a total freedom of good thoughts. Good thoughts, good words, good words and good actions. Good actions. ठीक है. कवि क्या प्रार्थना कर रहा है? अपने कंट्री को जागृत करने के लिए प्रार्थना कर रहा है. जहां पर कंट्री जो है क्या बने? एक सुंदर एक स्वर्ग जैसा जहां हो उसके देश में, जहां पर आजादी सर्वत्र छाई हो और टोटल फ्रीडम हो लोगों को विचारधाराओं का, थॉट्स का, शब्द अपने विचारों को व्यक्त करने का, कार्य करने की सारी कंप्लीट फ्रीडम हो लोगों को, है ना. देन पोएट विशेष. This I must erase because I have to write at the top of the board that is comfortable for me. So I am erasing these.
विशेष, WISHES, विशेष, for a country where knowledge would be free to all. Free to all, and the people of all caste and people of all caste, CASTES, all castes and religions, 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 are united and fearless. United and fearless. I like this poem very much because it teaches the values such as importance of freedom, knowledge, knowledge, equality, and liberal society. Okay, so poet wishes for a country where knowledge would be free to all. ये हमने पूरी कविता में बार बार पढ़ा है कि नॉलेज सभी के लिए फ्री होना चाहिए, फॉर रिच एंड पुअर, फॉर हाई एंड लो, एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन आर यूनाइटेड एंड फियरलेस। चाहे कोई भी कास्ट हो, भारत जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में ना बटा हो, नैरो वॉल्स ना हो, है ना, दुनिया में, इवन नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड देयर शुड नॉट बी द फ्रेगमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, है ना। आई लाइक दिस पोएम वेरी मच। मुझे कविता बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये महत्व सिखाती है, ऐसे मूल्य सिखाती है जिसमें आज़ादी का महत्व, ज्ञान का महत्व, एकता का महत्व, और लिबरल सोसाइटी मतलब जो बहुत लिबरल है, कुछ ऐसी सोसाइटी है जो आज़ाद भी है, साथ में कुछ नियमों के दायरे में भी बंधी हुई है, ठीक है। सो दिस इज द एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम। अब आपको क्या करना है, आगे के 9 और 10 नंबर के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पूरी एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में उतारना है, वो आपको जरूर करना है। और 9, 10 जो है क्वेश्चन वो आपको खुद सॉल्व करना है। इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर आपको एक स्पीच तैयार करनी है स्कूल असेंबली के लिए। इन पॉइंट्स के आधार पर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 है काबुलीवाला की रविंद्रनाथ टैगोर ने जो स्टोरी लिखी है वो पढ़ना है, और रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ के बारे में वेबसाइट में जाकर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये सब आपको करना है। डू दिस ऑल, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट पीरियड। बाय।